اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس کے دونوں بازو کا درمیانی فاصلہ یعنی مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں، مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں، مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کا دونوں پاؤں تحت الشرا میں ہے، آباد خلق کے برابر اس کے پیر ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اذن الہی ہوگا کہ وہ فرشتہ بحر نور کے اندر غوطہ زن ہو، یعنی اور جب وہ غوطہ زن ہونے کے بعد، غوطہ لگانے کے بعد جب باہر نکلے اپنے پرے کو جھاڑے، آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا سر زیر عرش کے اوپر ہے، پیر تحت الشرا میں ہے، دونوں پر جو ہے مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ بحر نور میں غوطہ زن ہوگا اور غوطہ لگا کر کے جب اپنے پروں کو جھاڑے گا، اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑے گا اور اس کے پروں سے جو قطرات ٹپکیں گے، ہر ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتی ہے، اور وہ فرشتہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، کس کے لیے؟ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمایا گیا ہے، ایک دانا کا قول یہ بھی ہے کہ اگر جسم کی سلامتی چاہتے ہو تو کم کھایا کرو، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی بقا جو ہے کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی درود پاک پڑھنے میں ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان سلامت رہے، ہماری ایمان سلامت رہے، تو محبت رسول کو ثابت کر کے درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی رب تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے میرے دوستوں اور عزیزوں، یعنی دل میں خوف خدا پیدا کرو، رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی بات کو رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر کا قیامت، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، دن و رات، سارے کے سارے آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ آدم کے اولاد نے یہ بھلائی کا کام کیا ہے دنیا میں رہ کر کے، یا برائی کا کام کیا ہے، تابعداری کی ہے یا نافرمانی کی ہے؟ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے ہر ایک اعضا آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس اعضا کے لیے آپ نہ جانے کتنا روپیہ خرچ کر بیٹھتے ہیں، جس جسم کو سنوارنے کے لیے نہ جانے کتنا روپیہ خرچ کر بیٹھتے ہیں، یہ جسم بھی بروز قیامت آپ کا نہ ہوگا، یہ جسم بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کے نیک ایماندار کے حق میں، نیک ایماندار شخص کے حق میں زمین یوں گواہی دے گی، اے میرے پاک پروردگار عالم مالک و مولا، اے میرے مولا، یہ شخص میرے پیٹھ پر نماز پڑھا کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، حج کیا ہے، زکات دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، بھائی بھائیوں میں محبت تھا، ایک دوسرے سے پیار کرتا تھا، چھوٹوں پر شفقت کرتا تھا، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ شادمان ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ
ताला के बारगाह में ये खुशहाल होगा, रब का हुक्म होगा इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फरिश्तों इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते उसे जन्नत में ले जा करके दाखिल फरमा देगा। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों और बुजुर्गों, कहे मेरे अजीजों और बुजुर्गों, काफिरों को हक में जमीन यूं कहेगी, या पाक परवरदिगार आलम मालिक मौला, ये मेरे ऊपर रह करके शिर्क किया करता था, मेरे ऊपर रह करके ज़ना किया करता था, मेरे ऊपर रह करके ये बदकारी किया करता था, मेरे ऊपर रह करके ये लोगों के साथ बुरा सलूक किया करता था, मेरे ऊपर रह करके ये लोगों के साथ जुल्म किया करता था, मजलूम के ऊपर जुल्म किया करता था। अगर कबीरा अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में ये हलाकत और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा, उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। फिर रब तबारक व तआला का हुक्म होगा, अगर रब तबारक व तआला इन पर करा मुहासिबा कर दिया, अरहमुर राहिमीन है, रब चाहे तो बख्श दे, वरना हुक्म होगा फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जा करके डाल दो। रब तबारक व तआला का हुक्म होती ही उस शख्स को पकड़ेगा फरिश्ते और ले जा करके जहन्नम में डाल देगा। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, जहन्नम की आग को याद रखे मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर कबीरा। आज़ा के साथ साथ रब तबारक व तआला से खौफ का पता जो है 7 चीजों से पता चलता है। एक नंबर तो ये है कि उसका जो है यानी जुबान को बयान किया गया है, जुबान यानी जुबान रब तबारक व तआला ने दिया है तो सिर्फ और सिर्फ रब तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए। रब तबारक व तआला हमें जुबान दी है तो रब तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए, कलामुल्लाह की तिलावत करने के लिए, दीनी उलूम को सीखने के लिए रब तबारक व तआला ने हमें जुबान अता किया है। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों और बुजुर्गों, ये जुबान जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ जो है कलामुल्लाह की तिलावत करने के लिए दिया है, रब तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए दिया है, दीनी उलूम को सीखने के लिए दिया है। ऐसा नहीं कि इस जुबान से हम गलत बयानी करें, दूसरे की ग़ीबत करें या किसी पर गलत तहमत लगाए, किसी पर जो है गाली दे अपनी जुबान से। रब तबारक व तआला हमें इसलिए जुबान नहीं दिया है मेरे अजीजों, बल्कि रब तबारक व तआला तो हमें इसलिए जुबान दिया है कि जब तुम जिक्र जुबान को खोलो, अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का जिक्र किया करो। जब तुम जिक्र जुबान, जब तुम अपना जुबान खोलो, रब तबारक व तआला का जिक्र करो, कलामुल्लाह की तिलावत करो और दीनी उलूम को सीखो, उसके बाद नंबर उसका दिल है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी दिल से हसद, ग़ीबत और जो है बुहतान जो है निकल जाए। आज हमारा हाल है कि आज हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए हसद हुआ करता है, एक दूसरे की जलन हुआ करता है दिलों में। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे अजीजों और बुजुर्गों, ये दिल जो है रब तबारक व तआला ने हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम किसी की बुहतान को रखे दिल में, हम किसी के लिए जो है बुराई भर करके रखे दिल में, हमें इसलिए दिल नहीं दिया है, बल्कि तो दिल तो इसलिए दिया है कि मोहब्बत करे, एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे की मोहब्बत रखे, अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क अपने दिल में कर ले मेरे अजीजों और बुजुर्गों। उसके बाद कहा गया है मेरे दोस्तों, उसके आंख यानी निगाह रब तबारक व तआला इसलिए नहीं दिया है कि हम गलत वीडियोस को देखें या गलत निगाह किसी पर डाले। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस आंख को दिया है, इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपनी आंख में बुराई भरी, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उस पर आग भरेगा, जहन्नम की आग को डाल देगा उसके आंख में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आंख के अंदर अगर एक छोटा सा बाल गिर जाए, क्या आप उसकी बर्दाश्त कर पाते हैं? आप उसकी तकलीफ को बर्दाश्त कर पाते हैं? नहीं नहीं, आप उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप चाहे तो डॉक्टर का सहारा लेकर के उस आंख के बाल को बाहर निकालते हैं, या चाहे किसी भाई के जरिए के बाल को बाहर निकालते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे अजीज और बुजुर्गों। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम कहीं सफर पर जाते हैं या किसी चीज पर हम सफर कर रहे होते हैं और अगर अचानक एक अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से अगर एक कीड़ा मेरे आंख पर पड़ जाए, कि आप उस सब से बेचैनो बेकरार हो जाते हैं, बेचैनो बेकरार हो जाते हैं, जल्दी फौरन उस आंख के कीड़े के अंदर के कीड़े को निकालने के लिए बेचैनो बेकरार रह जाते हैं। चाहे हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं, चाहे या किसी के जरिए से उस आग के कीड़े को निकालते हैं। अब मैं पूछना बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, उस आग ऐसी आग होगी जहन्नम की मेरे
दोस्तों उस आग को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। तो अपनी आंखों को गलत निगाह किसी पर ना डाले, अपनी आंख से हराम चीज अगर देख करके आप छोड़ दे, हलाल चीज के तरफ अपनी आंख को इस्तेमाल करे। बयान फरमाया गया है कि उसके पेट में अगर हराम का लुकमा, एक लुकमा चला जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम खाते वक्त ना हराम देखते हैं ना हलाल देखते हैं। इसे मुस्तफा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि जो शख्स हराम का एक लुकमा अपने पेट में डाला, हराम का एक लुकमा अपने पेट में डाल दिया, तो जमीन और आसमान का सारे फरिश्ते उसके लिए जो है उस पर लानत करेगा। जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते उसके लिए लानत करेगा। और यहाँ तक के कहा गया जब तक वो लुकमा, वो हराम का खाना आपके पेट के अंदर रहेगा, तब तक वो फरिश्ता आपके लिए जो है आप पर जो है लानत भेजेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कहा गया है कि अगर वो शख्स उसी हाल में मर गया, यानी उसे मौत आ गई, उसका रूह कब से कर लिया, अल्लाह अकबर कबीरा, उसका ठिकाना डायरेक्ट जहन्नम में हो जाएगा। यानी हराम से अगर ना बचे मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी के पेट में हराम का एक लुकमा जाता है, हराम का एक लुकमा पहुंचता है, जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते उसका लानत करेगा। यहाँ तक कि जब तक उसके पेट में हराम का लुकमा मौजूद रहेगा। और आगे कहा गया है कि अगर उस हराम के लुकमा के पेट में रहे और फिर उसकी मौत हो जाए, ठिकाना डायरेक्ट जहन्नम हो जाएगा। मेरे अजीजों, हम आज जो है अपने पेट को किसी तरह भर लेते हैं, ना हम हलाल देखते हैं ना हम हराम देखते हैं, जहां से आता है हम अपने पेट में डालते चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, हराम और हलाल को पहचानने की कोशिश करें मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको बता दूं, हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे मोती का एक महल पैदा फरमाया है, जिसके महल के अंदर 70,000 घर है और 70,000 घर के अंदर 70,000 कमरे में है। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी 70,000 घर के अंदर 70,000 कमरे में है, कमरे हैं। और हर जब उस शख्स को दाखिल किया जाएगा इस घर में, यानी इस घर के अंदर, इस महल के अंदर उस शख्स को दाखिल किया जाएगा जिसके सामने हराम पेश किया गया हो, जिसके सामने हराम खाना ला करके रख दिया हो, जिसके सामने हराम कपड़ा ला करके रख दिया हो, जिसके सामने हराम खाने पीने का सामान रख दिया हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ खौफ खुदा की वजह से, रब तबारक व तआला के खौफ की वजह से जो है उस खाना को खाना छोड़ दे, उस कपड़े को पहनना छोड़ दे, उस पानी को पीना छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उस महल में दाखिल फरमाए। रब तबारक व तआला ने सबसे मोतियों से बनाया है। उस महल के अंदर 70,000 कमरे, 70,000 घर और 70,000 घर के अंदर 70,000 कमरे में। और किसको दाखिल फरमाएगा? यानी जिस शख्स के सामने हराम पेश किया जाए, हराम ला करके रख दिया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है खौफे खुदा की वजह से, रब तबारक व तआला के डर की वजह से उस खाना को छोड़ दे, या फिर कोई हराम कपड़ा हो उसको पहनने से इनकार कर दे, खाने से पीने से छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसे उस महल में दाखिल फरमाएगा। तो जरूरी है कि हराम खाने से, पीने से, पहनने से, हराम कार से, सब चीजों से बचे रहे। फिर कहा गया है उसका हाथ, रब तबारक व तआला ने हाथ दिया है तो किसी गरीब को सताने के लिए नहीं, किसी गरीब को मारने के लिए नहीं, बल्कि अताते इलाही के तरफ अपने हाथ को बढ़ाए। फिर उसके बाद पाँव, रब तबारक व तआला के हुक्म के खिलाफ अपने पाँव को भी इधर उधर ना करें। और 7वां नंबर है कि इबादत, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है इबादत अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए, किसी और की इबादत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हो।
اور اگر آپ نے ایسا کر لیا